بس اوکے بھائی صاحب یہ جو گئی جو کچھ بھی ہے ہاں سب بولے ہاللیلویا. آئیے خدا کے کلام میں سے زندہ اور معتبر کلام میں سے سیکھیں گے. آج ہم سیکھیں گے کہ غیر قوموں جیسے کام نہیں کرنے. جو غیر قومیں کرتی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا. سب بولے ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہو. ہاللیلویا. تم کیا ہو؟ خداوند اپنے خدا کی کیا ہو؟ مقدس قوم ہو. ہاللیلویا. تو آئیے ایک حوالہ پڑھیں گے ہم بائبل مقدس میں سے. میرے ساتھ نکالیے گا ذرا خروج کی کتاب. خروج کی کتاب. خروج کے جو معنی ہیں وہ ہے نکلنا، خارج ہونا. اور خروج کی کتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر بنی اسرائیل ہمیں مصر میں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. آمین. سب بولے ہاللیلویا. پیدائش کی کتاب، پیدائش کی جو کتاب ہے وہ خلق کی کتاب ہے کہ خدا نے مخلوق کو کیا کیا؟ خلق کیا. اور خروج کی کتاب جو ہے وہ اس میں بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے ہمیں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور احبار کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے وہ قربانیوں کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. گنتی کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہمیں شمار نظر آتا ہے، اس میں شمار کیا جاتا ہے. اور جو استثناء کی کتاب ہے اس کے اندر شریعت کو دہرایا گیا ہے. ہاللیلویا. خروج 23واں باب اور اس کی ہم 23ویں باب کی 23 آیت سے 24ویں آیت تک ہم 2 آیتوں کو تلاوت کریں گے. جی پادری صاحب پاسٹر فرانسس فیروز جو ہے وہ تلاوت میں رہنمائی کریں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ جگ یہاں سے اٹھا دیں. جاگر کنانیوں اور کنانی اور حویوں ہاں جی اور یبوسیوں ہاں جی میں پہنچا دے گا. کتنی قومیں ہیں؟ 6. کتنی قومیں؟ 6 کا جو عدد ہے وہ ہے انسان، یعنی کہ انکمپلیٹ. کیا ہے؟ انکمپلیٹ، جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے. یہ قومیں جو رہ رہی تھی وہ ملک کنعان میں رہ رہی تھی اور خدا بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نکال کر لا رہا تھا مصر سے. اور بنی اسرائیل مصر سے نکل کر جو ہے وہ ملک کنعان کی طرف سفر کر رہے تھے. اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں تمہیں وہاں پر پہنچاؤں گا جہاں پر یہ 6 قومیں رہتی ہیں. پر آگے کیا لکھا ہے؟ جی اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا. تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ تو کرنا، ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا. نہ ان کے سے کام کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا. آج ہم سیکھیں گے کہ ان کے کام کیا تھے. خدا نے ہمیں کیوں منع کیا ہے یا بنی اسرائیل کو کیوں منع کیا گیا؟ آمین. وہ کام اصل میں کرتے کیا تھے؟ ایسا کیا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو منع کیا؟ آمین. یاد رکھیے گا بنی اسرائیل کو یہ سکھایا کیا کہ جو غیر قومیں کرتی ہیں وہ کام نہیں کرنا. اگر تم وہ کرو گے تو پھر مرو گے. آمین. اگر خدا کسی بات سے منع کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے آدم سے کہا کہ تو باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتا ہے پر نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے نہ تو اس میں سے کھانا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے نہ کھانا. جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، نیک و بد 2 طرح کا ٹیسٹ. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ایک چشمہ سے 2 طرح کا پانی نہیں نکلتا، یا تو کھارا نکلے گا یا میٹھا نکلے گا. آمین. پر یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے اس کے پھل میں سے نہ کھانا. اگر تو نے کھایا تو کلام میں لکھا ہے خدا نے آدم سے کہا تو مرا. تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نیک و بد کے پہچان کا جو درخت ہے یہ نہ کوئی آم ہے نہ کوئی سیب ہے. نیک و بد کی جو پہچان ہے یہ کلام ہے. آمین.
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। शैतान चंगियां गल्लां भी करता है तो माड़ियां भी करता है या नहीं? कोई यहां पर बैठा है जो ये साबित करे मुझे कि ये कोई दरख्त था। कलाम में लिखा है कि ये दरख्त लगाया गया। क्या किया गया? दुनिया में ऐसा कोई दरख्त है जिसके खाने की वजह से मौत होती है और जिसके खाने की वजह से जिंदगी होती है? सुनिएगा, यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का हकीकी, मैं अंगूर का हकीकी। मुझे ये बताएं कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं? इसलिए क्योंकि बनी इस्राइल ये समझते थे, इब्रानी ये समझते थे कि जो अंगूर का दरख्त है असल में यही हयात का दरख्त है, क्योंकि इसका फल सेम ऐसा ही था। हालेलुया। क्या था? यीशु ने इसलिए कहा कि मैं हूं वो। असल में खुदा जिस चीज से मना करता है वो चीज खाने की वजह से गुनाह नहीं होता, बल्कि हुक्म को तोड़ने की वजह से गुनाह होता है। हालेलुया। जब खुदा के हुक्म को तोड़ दिया जाता है तो गुनाह होता है। और कलाम लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। लिखा है गुनाह शरीयत की मुखालफत है। जब कोई शख्स खुदा के खिलाफ काम करता है वो शरीयत को रद्द करता है, खुदा के कानून को रद्द करता है। और जब कोई खुदा को रद्द करता है तो वो गुनाह करता है। और जब कोई गुनाह करता है, गुनाह के जो मायने हैं वो है नाफरमानी। जब कोई नाफरमानी करता है तो नाफरमानी का जो नताइज है, जो सिला है, जो कमाई है, जो रिवार्ड मिलता है वो है मौत। वो क्या है? जिस रोज तूने खाया तू मरा। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता उसमें जिंदगी है और उससे मैं आखिरी दिन क्या करूंगा? जिंदा करूंगा। क्या वाकई यीशु मसीह ने अपना जिस्म उतार कर यूं दिया था? यूं कहा, एक रोटी ली और शीरा लिया अंगूरों का, कहा कि ये मेरा नए ऐत का खून है और ये बदन, ये रोटी मेरा बदन है, कि ला के दे देती थी, अपना बदन ला के दे देता। ये ईमान है, ये कलाम है। हालेलुया। लिखा जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो कभी ना मरेगा। मैं दसना चाह रहा हूं वो सच कलाम है। खुदा दा होवे या शैतान दा होवे। बागेदान च उन्हें क्या आख्या? उन्हें क्या तुम बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खाते? उन्हें कहा नहीं, सारा ना खाने। ठग दे काम वेखो तुसी, झूठे दे। लिखा वो झूठा बल्कि झूठ का, और जब वो झूठ बोलता तो लिखा है कि वो अपने जैसी ही कहता है या जैसा वो खुद है। झूठा तो झूठा झूठ की बोलता है कि कह रहे हैं बाग के किसी दरख्त का फल नहीं खाते। उन्हें क्या हम खाते हैं? पर नेको बद की पहचान का जो दरख्त है जो बाग के दरमियान है उसकी बाबत खुदा ने मना किया है। ठीक है। उसने कहा नहीं, खुदा जानता है कि जिस रोज तुमने खाया तुम खुदा की मानद हो जाओगे। एक वड्डा झूठ जड़ा कि उन्हें बड़ी सफाई ना बोले। हालांकि कलाम लिखा है कि आदम खुदा की सूरत है। कलाम लिखा है मर्द खुदा की सूरत और उसका जलाल है। मर्द, यहां पर जितने मर्द बैठे हैं वो आदम और ये आदम जो बैठे हुए हैं या मैं, कलाम लिखा है कि मर्द खुदा की सूरत है। लिखा है मर्द की सूरत औरत है। मर्द जो है वो खुदा की सूरत और औरत मर्द का जलाल है। मर्द खुदा का जलाल है और औरत मर्द का जलाल है। जलाल के तीन मायने हैं। रोशनी, ये जो भी चल रही है, गुस्सा, जलाल मतलब रोशनी, गुस्सा, चेहरा, ये तीन मायने हैं इसके। पर खुदा यहां पर जो बात कर रहा है वो कर रहा है कि इंसान मेरे जैसा है, मर्द मेरे जैसा है। खुदा सब चीजों पर इख्तियार रखता है। उसने इंसान को, मर्द को भी दिया, और मर्द के बाद जो मामन है, जो उसके असिस्टेंट है, वो औरत है, मददगार। सब बोले हालेलुया। अब यीशु मसीह को कौन मिला? लूसीफर मिला। और क्या कहता है? कहता है अगर
तू इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जा। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी बन जा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आदम को यही कहा गया था कि जो मैं कह रहा हूं करना ही, पर आदम और हवा ने वो किया जो शैतान ने कहा। मतलब कलाम माना गया। क्या माना गया? लालच गुनाह की जड़ है। आदम और हवा को लालच पड़ गया। कैसे लालच कैसे आया? बीवी के वसीला से। लिखा है कलाम में, लिखा है खुदा ने आदम से कहा इसलिए कि तूने अपनी बीवी की बात मानी, जमीन तेरे सबसे लानती हुई क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। और बीवी ने शैतान की बात मानी। बात मानी गई है। वो चीज जो खुदा ने मना की है उन्होंने वो किया। अमेरिका से खादम आया तो उसने एक स्टोरी बताई। उसने कहा कि एक आदमी था, उसने अपने नौकर को, और उसके घर में एक नौकर था उसका और उसकी बीवी थी, ऐसा किया कि उसने उनकी दावत की और यूं टेबल पर खाने लगा दिए और एक कुज्जी दरमियान में रखकर उसका मुंह बांध दिया और उसमें एक चिड़िया रख दी, जिंदा चिड़िया अंदर उसके डाल दी और उससे कहा कि मैं जा रहा हूं, ये सारे खाने आपने खाने हैं पर कुज्जी नूं नहीं छेड़ना। और टुर गया तो लोग के वेखण दिया से कर दे की रोटी खाण दे नाल कुछ कुछ चल रही की है ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ है? मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੋਕਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਚਿੜੀ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। जैसे वो चली गई वो बाहर आया, वो अंदर आया, उन्होंने कहा उठो चलो निकलो बाहर, तुम इस काबिल नहीं कि मैं अपना घर तुम्हारे हवाले करूं। मेरी बात समझ आई? मैं की आंखें आई है कि फिर शुरू करा? गुजारा चल जाएगा? सब बोले हालेलुया कि फिर मुंडो खुटो? मेरी बात समझ आई है? खुदा की कह रहे हैं, खुदा बनी इस्राएल की कह रहा है, जेड़े मुल्क च जा रहे हो तो 6 कौमां रहिंदियां ने, मैं इन्हां हलाक कर दियांगा। क्यों? वो कर दिया की ने? वो बुत परस्त हैं। वो क्या है? वो क्या थी? वो देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। वो देवियों और देवताओं की क्या करते थे? सूरज की परस्तिश, चांद की परस्तिश, सितारों की परस्तिश, इंसान की परस्तिश, सांप की परस्तिश, पानी की परस्तिश, हर ऊंचे पहाड़ की परस्तिश, हर ऊंचे दरख्त की परस्तिश, वो सारे ये काम करते थे क्योंकि ये हाम की नस्ल से हैं सारे। इन कौमों को पढ़कर देखें, इनका निस्बनामा पढ़ें पैदाइश की किताब 10वें बाब में, तो ये सारी की सारी जो नस्ल है ये आपको नजर आएगी हाम की नस्ल। और हाम जो है बुत परस्त लोगों का या बुत परस्त कौमों का बाप है, बल्कि इसे काहिन माना जाता है। बुत परस्ती इसी से निकली है। बुत परस्ती इसी से निकली है। और ये मुल्क किनान कौन सी जगह है? मुल्क किनान जो ये बाग अदन है, और बाग अदन को छोटी सी सरजमीन नहीं है, ये बहुत बड़ी सरजमीन है क्योंकि बाग अदन के अंदर जो दरिया, जो एक दरिया और 4 जो नदियां लिखी हुई हैं, जब उनको आप सर्च करेंगे तो इसी खित्ते में वो निकलेंगी, जिनमें से एक पाकिस्तान में भी आती है। 4 नदियों में से एक पाकिस्तान में भी आ रही है। याद रखिएगा, खुदा ने इनको बताया कि उन जैसे काम ना करना, उन जैसे काम तू बुतों को सजदा ना करना, तू बुतों को सजदा ना करना। अगर करेगा तो फिर नुकसान उठाएगा। मैं आपको बताता हूं ये करते क्या क्या थे। आइए बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला निकालें, खुदा के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब 18वें बाब की आप 9वीं आयत को पढ़ें जी, जल्दी से खुदा के कलाम में से, जी खुदा के कलाम में से निकाल कर रखे, शाबाश है। आगे इसकी 14वीं आयत भी आपने निकालनी है, 18वें की 14वीं भी है। हाँ जी पढ़िएगा जरा सर। जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए,
तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम वहां की करने कौमों ना की सीख। तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए या फालगीर ठीक है, या और शगुन निकाले। वो ये करते थे, फालगीर थे और आग में चलाते थे। कहां पे? आग में जलाते। आगे हाँ जी, या अफसून गर अफसूनगर या जादूगिर या जादूगर या मंत्री या मंत्री या जिन्नात का आशना या जिन्नात का आशना या रमाल या रमाल या सहर हो, या सहर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरू। वो खुदावंद के नजदीक क्या है? मकरू। मकरू किसे कहते हैं? नापाक। वो मकरू काम करते हैं, और जो मकरू काम करते हैं खुदा उनको पसंद नहीं करता, वो अपनी जमीन से मिटा डालता है। आमीन। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं तेरे आगे से उनको निकालने पर हूं, पर तू वैसे काम ना करना। आगे बढ़िएगा सर जी। और इन ही मकरूहात के सबब से खुदा उनको तेरे सामने से निकालने, इन्हीं मकरूहात की वजह से खुदावंद तेरा खुदा तेरे सामने से उनको निकालने पर है। आगे, तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना, तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा हाँ शगुन निकालने वालों और फालगिरों की सुनती हैं, वो सुनती हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे पर खुदा ने तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। सुनिए मेरी बात को जरा, वो सुनती हैं। छट पर पादरियों का काम नहीं हूं, रहन दे, ये पादरियों का काम नहीं, किसी सियाने को चलिए। ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੀ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਲੈ, ਉਹ ਮਰਚਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਓਏ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਪੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। वो सुनती हैं, और ये मकरू काम है। ये क्या है? ये क्या है? ये मकरू काम है। सुनिए खुदा उन्हें क्यों बता रहा है? क्योंकि जब इल्म नहीं होता तो फिर नुकसान होता है। क्या होता है? आज लोग क्यों गुनाह दे विच मर रहे हैं? ਉਹਦੀ वजह की है कि सिखाया नहीं जाता लोगों को, ना लोगों को टाइम है। ਇਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਟੁਰ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਗੀਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੇ ਨੇ। क्योंकि हम कलाम सुनाने के लिए आए हैं, खाली गीत गान नहीं आए। फ्रांसिस फिरोज में फंदा रखे है, और वेंदे से ना और सियाह जो पढ़ते सन की चिड़िया, ठीक है, तो फंदा लाते सन, ऐ दाना पाते हैं। खुदा बरकत दे इनको। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा के अजीम खादम है, खुदा ने बरकत दी। ये तो अचानक हुआ है कि ऐसे हुआ है, वरना ऐसे होता नहीं है। सब बोले हालेलुया। मैं इस बात का मुंतज़िर रहता हूँ कि ये प्रोसेस करे, उसके बाद मैं कलाम सुनाऊं। हालेलुया। माहौल को क्रिएट, पर खुदा की शायद यूं ही मर्जी थी। सब बोले हालेलुया। ठीक है, गैर कौमों से काम ना करना, वो जादूगरों की सुनती हैं, पर खुदावन तेरे खुदा ने तुझे ऐसा करने ना दिया। मैंने बताया या मैं बात कर रहा हूं कि अगर खुदा इनको ना बताए या खुदा इनको शरीयत ना देता, तो अगर ये वो काम करना शुरू हो जाते तो खुदा इनको मिटा डालता, पर इन्होंने ये काम किए हैं। क्योंकि जो बातें अभी आप सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद नहीं, बहुत सारे बच्चे जो भी पैदा नहीं हुए, बहुत सारे बच्चे जो भी पैदा होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे जिनको इन बातों की समझ नहीं, पर अगर मुसलसल तरतीब के साथ पूरी बाइबल खानदान को पता ना हो, बड़ों और छोटों को पता ना हो, तो नस्लें खानदान बर्बाद हो जाते हैं, अपने ईमान से फिर जाते हैं। और खुदा ने बता रहा है कि उनका ईमान ये है, वो जादूगरों की, मंत्रियों की, साहिल की सुनते हैं, वो जादूगरों की सुनते हैं, वो जिन्नात के जो आशना है, ओदे कोल जिन नहीं, ओदे कोल की है, ओदे कोल जिन नहीं।
सुनिए, वो उनकी सुनती हैं। क्या करती हैं? वो उनकी सुनती हैं। मनु याद रखो, अगर इल्म नहीं तो तबाही मचेगी। की मचेगी? तबाही। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि जब इल्म नहीं होता तो तबाही मचती है, फिर खुदा बर्बाद कर देता है। पता क्यों? खुदा दो लोगों को मारता है, पादरी को और लोगों को मारता है, जब सही बात ना सिखाई जाए या सही काम ना किया जाए। एली काइन और उसके बेटों के बारे में कितने लोग को पता है? जिनको पता है वो बताए उनके साथ क्या हुआ था। किसी को पता है? एली काइन, सैमुएल की किताब पहला सैमुएल में एली काइन और उसके बेटों के साथ क्या हुआ? ये हारून की नस्ल से थे खास। पता क्या हुआ था उनके साथ? कलाम में लिखा है कि एली काइन के बेटे शरीर थे। वो औरतें जो खिदमत करती थी खुदा के घर में, खैमा इज्तिमा में जो खिदमत करने वाली औरतें थी, उनके साथ वो बदकारी करते थे। और उसके बाद जो कुर्बानी खुदा के ज़ुर गुजरानी जाती थी, निहायत मुकद्दस, क्योंकि खुदा ने जो हिस्सा रखा हुआ है ना खादम के लिए, अगर खुदा खादम उन हिस्से से हटकर अगर खाता है तो वो गुनाह करता है। वो क्या करता है? गुनाह करता है। मतलब हिस्सा पादरी साहब ए दा ये किए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ खुदा ਦਾ हिस्सा है, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦਾ। पर अगर कोई पादरी ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਵਾ ਤੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ प्रोग्राम ਦਾ ਹੈ, तो पादरी हजम कर जाए तो बच जाएगा? ओदी खैर नहीं, ओदी खैर ते की कर दे सन। खुदा ने एक हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है बाइबल मुकद्दस में। अगर आप पढ़े ना एहबार की किताब और गिनती की किताब, तो वहां पे लिखा है कि तुम्हारा हिस्सा क्या क्या है। अभी टाइम नहीं है, तुम्हारा ये हिस्सा है, तुमने ये खाना है। बाकी कुछ चीजें थी जो कि खुदा के ज़ुर जलानी होती थी, उसमें से भी कांटे मार मार कर निकाल लेते थे। और जब लोग मना करते थे तो उनकी वो सुनते नहीं थे, और ये एक बड़ी मकरूह बात थी। और लोग अफसुर्दा थे कि मेरी कुर्बानी तो पहुंची हुई नहीं खुदा के सामने, मैं कैसी पादरी नूं देख दे, पादरी आंदा नहीं सीमट की बोरी लै आने। गल समझ आ रही है ना? गल तो हो गया ना? जो हदिया जो मन्नत जैसे मानी है वैसे ही देनी है, उसके मुतबादल दूसरी बात नहीं। जैसे कलीसिया ने कहा कि मैंने खुदा के ज़ुर ये माना है वैसा ही देना है, और वो गलत करते थे। खुदा ने एली काइन और उसके बेटों को एक ही दिन में मार दिया। क्या कर दिया? एक ही दिन में मार दिया। कलाम में लिखा है कि हारून सरदार काइन जो कि मूसा का बड़ा भाई था, हारून के दो बेटे थे। खुदा ने कहा कि ये आग मैंने मज़बा पर लगा दी है, बुझनी नहीं चाहिए। फकत तो ना करना ऐसी कि लकड़ियां टाइम ना रखनियां सन, ये बुझे ना। उन्हें लापरवाही की थी, बुझ गई, उन्हें अपने को आग लाई, खुदा ने उन्हें मार दिता। गल समझाइए? आग बुझनी नहीं चाहिए, मज़बे पर आग लगनी चाहिए। मतलब ये है कि जब इल्म नहीं होता तो तब बर्बादी होती है। खुदा इसलिए बनी इसराइल को सिखा रहा था, और मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कि हम खुदा की कौम हैं, मुकद्दस कौम है, खुदा के लोग हैं, हमें नबी दिए गए हैं, हमें पैगंबर दिए गए हैं, हमें शरीयत दी गई है, हमें फजल दिया गया है, हमें बेटा दिया गया है, और उसके बावजूद भी हम अपने अंदर बुत रखें और बुतों के सामने झुकें और खुदा से हटकर और चीजों पर जो है वो तवक्कल करें। याद रखिएगा, ये मौत को खरीदने की बात है, मौत में जाने की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा कि अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ें तो होशिया की किताब में लिखा हुआ है 4 बाब की 6 आयत में कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। अगर मार्फत नहीं, अगर इल्म नहीं, अगर कलाम नहीं, अगर कलाम को सीखा नहीं गया, अगर कलाम को लोग जानते नहीं तो लोग मरेंगे। ऐदना काम नहीं चलना। ओ जो भाई भैन जी दुआ की खुदा तन बरकत दे बाय। ऐसे काम नहीं चलेगा। कलाम को सुनना जरूरी है, बाइबल को पढ़ना सुनना इंतहाई जरूरी है कि खुदा क्या चाहता है।
پر آگے کیا لکھا ہے؟ خداوند تیرے خدا نے تجھے ایسا کرنے نہ دیا. کیوں؟ پڑھیے گا ذرا سر. میرے کول بہت کچھ ہے پر میں بڑی سپیڈ لا رہا ہوں جی. سر ہاں، پر خداوند تیرے خدا نے تجھے ایسے کرنے نہ دیا. 14ویں آیت جی. پر خداوند تیرے خدا نے تجھے ایسا کرنے نہ دیا جی. نہیں 14ویں آیت نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، 15ویں آیت کو پڑھے، پڑھ دیں. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی موسیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس درخواست کے مطابق جو تو نے حور پر کی، جب خدا اترا تو بنی اسرائیل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ آگ اور اس کے بعد دھواں اور کالا بادل اور ظلمت تھی. پہاڑ کانپ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، اور ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی. انہاں جدو سارا منظر ویکھیا، انہاں کہا بابا آ ویکھ، موسیٰ آ ویکھ، تو خدا نہ خود ہی گلاں کریا کر تے جڑی گل کہے سانو آ کے دس دیا کر تے اسی من لواں گے. اسی اے موت دا نظارہ نہیں دیکھ سکدے. تو ہی ہمیں بتا دیا کر. آج آگے بڑھیے گا. تم اس کی سننا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، ہاں، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، ہاں جی اور آگے، نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو ہاں، تاکہ میں مر نہ جاؤں. تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک کہتے ہیں. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، ہاں، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. آمین. سب بولے ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا میں جو کہتا ہوں میں نہیں بلکہ یہ میرا باپ کہتا ہے. ایسا ہی ہے. سب بولے ہاللیلویا. کلام میں یہی لکھا ہے نا کہ میرا کلام میرا نہیں بلکہ میرے باپ کا، میرے بھیجنے والے کا ہے. میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں. میں آیا ہوں کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. سب بولے ہاللیلویا. کہنا یہ چاہتا کہ قوم کو بتایا گیا کہ ویسے کام نہیں کرنے جو قومیں دوسری کر رہی ہیں. آمین. میں دوسری قوموں کے تھوڑے کام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پیدائش کی کتاب نکالیے گا ذرا خدا کے کلام میں سے. پیدائش 18واں باب اور اس کی 20 اور 21 آیت کو ذرا پڑھیے گا خدا کے کلام میں سے جی. پیدائش کی کتاب، یہاں پر لوط کی سٹوری ہے. کس کی ہے؟ کس کی سٹوری ہے؟ انہوں کنوں چھڑیا ہے؟ لوط نے کنوں چھڑیا سی والا؟ ابراہم نے. ابراہم کو اس نے چھوڑ دیا تو کی پسند کیتا؟ سدوم تے عمورہ. سدوم تے عمورہ اور لگتے کہیں دینے خدا کے باپ کی طرح. کس کی طرح؟ یہ ایسا لکھا ہوا ہے. آگے پڑھیے گا سر جی. پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، ہاں جی، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے. سدوم اور عمورہ کا شور پہنچا. کون سا؟ جو ابھی پاکستان میں یا پوری دنیا میں شور اٹھ گیا. کون سا؟ سیم سیکس، جنس پرستی. پاکستان میں قانون پاس ہو گیا ہے، دنیا میں قانون پاس ہو گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ ہو گیا ہے. بلکہ جو لوگ ایسے چاہتے ہیں وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھی چینج کر سکتے ہیں. اور یہ غیر قومیں کرتی تھی. کون کون سی؟ سدوم اور عمورہ میں بھی تھا اور نوح کے زمانے میں بھی تھا. آمین. اور یونانی یہ کام کرتے تھے، فرزی یہ کام کرتے تھے، کنانی یہ کام کرتے تھے. یہ قومیں یہی کام کرتی تھی. ہر طرح کا گنونا کام، ناپاک کام ان کے تھے جو کہ آج اعلان ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ پر کہ اس کے اندر حصے دار کون ہے.
शुरू च नहीं हो सकता किसी दिल ते लग जाए तो मैं हौली हौली साक डालना जी। सब बोले हालेलुया हालेलुया। सर 19वां बाब पैदाइश उसकी पहली दूसरी आयत को जरा पढ़िएगा जल्दी, कोई और भी हमारा निकालने में आपको बताया जाता हूं। सर आप पढ़ें अभी 19वें बाब की पैदाइश 19वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, और दूसरा वाला निकाले पैदाइश 19वां बाब 12वीं और 13वीं आयत को निकालने, दूसरा को निकाले खादम जी। और वो वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और सारे वो फरिश्ते दोनों सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। लूत कहां पर बैठा था? सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए हाँ जी उठा और जमीन तक झुका। लूत नू बड़ी पहचान है फरिश्तियां दी ते उठ के ते सजदा कीता है, उन्हां दी ताज़ीम वास्ते उठे है। ऐंदे लोग भी है ने, रेंदे गुनाह च ने, रेंदे भैड़ियां लोकां ने, जिने भैड़ी जमात च रेंदे ने, पर करदे की ने? पहचान भी है फरिश्तियां दी भी। फरिश्तियां दी की है यार, बंदा ते सही है, कलाम दी गल भी सही सुनांदा है, काम भी खुदा कर रहा है, पहचान भी है, पर जगह नहीं बदलदे, झूठ दा पल्ला नहीं चढ़दे। पहचान है, इन्हें भी पहचान लिया। तो की कहंदा है? सर पढ़ियो जरा। और कहा है मेरे खुदावंद अपने खादम, कहा ऐ खुदावंद अपने खादम के हाँ तशरीफ ले चले आगे, और रात भर आराम कीजिए, रात भर आराम कीजिए, अपने पाँव धोइए, अपने पाँव धोइए, और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। हाँ पाँव धोइए। पाँव धोने की रस्म उन्हें कहा ताड़े में पैर धोना, ताड़ी थकावट लाना, आओ आगे। और उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात और काट ना लेंगे। क्या असी चौक सी रात गुजारांगे, क्योंकि जो असी वेखना ही वेखना तसी वो है जेड़ा पखंड इत्थे होंदे है ना, जेड़े भैड़ा काम होंदे है वो वेखण तसी आए हैं ते सजा देण आए हैं, कोई वेले नहीं आए। उन्हें कहा नहीं बचित हुआ जी। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई। और बेखमीरी, ये भी पता है कि खमीर नहीं देना इन्होंने, क्योंकि फरिश्ते ने खमीरी रोटी नहीं दी उन्हें। खमीर समझते हो ना, ये एक्स चीज लगाकर तो रोटी को या आटे को बढ़ाया जाता है, मोटा किया जाता है ज्यादा, तो उसने उनको नहीं दी। फर्क महसूस है कि इन्होंने पैड़ी शाय नहीं देनी, क्योंकि फरिश्ते ने, एक खादम ने, खुदा दे बंदे ने। पहचान है। परिंदा किथे है? सदूम ते अमूरा च, जिथे की होंडे है, जिथे बदी हो रही है। की हो रही है? बदी हो रही है। आगे और इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने, जो इन जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेरा। उस घर को घेरे उन्हें वेख्या है, बंदे को तो अलग ही ने, एडे सोहने बंदे आए ने, सोहनिया शक्लां उन्हें वेखियां, तो उन्हें पता क्यों घेर लिया? उन्हें कहना ना बदकारी करनी है असी। भाई साहब की करनी है? इन्होंने की करनी है? सारा अब इसकी 12वीं और 13वीं आयत को पढ़े जरा जी। हाँ जी। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? क्या तेरा कोई और यहाँ है? दामाद और अपने बेटे दामाद और अपने बेटे और बेटियां और और जो कोई तेरा इस शहर में हो इस शहर में हो सबको इस मकाम से बाहर निकल। इस मकाम से बाहर निकाल, क्योंकि आसमान से आग और गंधक नाज़िल होगी। पढ़िएगा आगे। क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि इनका शोर खुदावंद के हजूर, इसलिए कि इनका शोर खुदावंद के हजूर क्या है? बहुत बुलंद हुआ, बहुत बुलंद हुआ, और खुदावंद ने इसे नेस्त करने को हमें भेजा। नेस्त करने को हमें भेजा है। 19 की 23वीं आयत को जरा पढ़िएगा जी जल्दी से। 19 की 23 आयत को जल्दी से। कलाम में मुकद्दस हमें क्या बताता है कि हम लिखा कि हम नेस्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि वहां पर बदी हो रही थी। क्या हो रही थी? गैर कौमों से काम, खुदा के लोग जो पहचान लगते हैं, अगर गैर कौमों की तरह काम करना शुरू कर दें, उनमें मिक्स हो जाएं, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। आगे। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत
ज़ुहर में दाखिल हुआ। हाँ जी, आगे। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और मूरा पर सदूम और अमूरा पर क्या भेजी? गंधक गंधक और आग आसमान से बरसाई। आसमान से बरसाई। और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को, हाँ जी, और उन शहरों के सब रहने वालों को, हाँ जी, और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। सब चीजों को क्या कर दिया? गारत। ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਦੇ ਚਰਵਾਹਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अगर तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा, जिधर तू जाएगा मैं उधर मुखालिफ जावांगा। ते सारी जमीन तेरे सामने है। इन्हें गौर ने वेखे तो सीधी नजर सदूम ते अमूरा ते। सदूम अमूरा सोहना है, दुनिया बड़ी सोहनी है। दुनिया दी रंग रलियां, दुनिया दे काम, फेसबुक, ठीक है, ते जनाब स्टेटस, ठीक है, स्नैक वीडियो, जिन्हें भी ड्रामे चल रहे हैं मैनू सारे ना पता है। मैनू की है सारे ना पता है केड़ी केड़ी बदकारी हो रही है। तो लोग उसमें बदकारी दिखाकर खुश होते हैं। एवं 30 मिनट का क्लिप होंगे, हसा देंदा है। ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी तुसी कहोगे तुहानू किस तरह पता है? ऑफ कोर्स मैं वेना या मैं वेख्या या मैनू पता है। दुनिया च जो होंडे ही अन्ने तो नहीं हाँ, कई पादरी अन्ने हो गए हैं, सानू सारा ही पता है ना ये की हो रहा है। तो हो रहा तो दस रहे हैं ना, किसी गल का पता होएगा तो दसांगे ना, तुहानू आगाह कर रहे हैं, बंदे बन जाओ। लिखा की है, वेखण सोहना, दुनिया बड़ी सोहनी लगती है, ओए हाय, पर सोने आगे ना ही बढ़ेगा हैं जी। बाइबल मुकद्दस में क्या सिखाती है? इसके साथ एक हवाला पढ़े, यिर्मयाह 17वें बाब की पहली आयत को निकालिएगा जरा खुदा के कलाम में से जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। मैं बिल्कुल एंड पे हूं, जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं जी। हाँ जी, 17वां बाब पहली आयत, यिर्मयाह की किताब जी। यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया। यहूदा का गुनाह, किसका गुनाह? यहूदा का। यहूदा का क्या मतलब है? हमदो सताइश, यहोवा की, ठीक है। यहूदा का क्या मतलब है? हमदो सताइश, ये यहूदा का मतलब है। तो यहूदा वो है जिसमें से यीशु ने आना है, यानी कि इस हिसाब के, इस दौर के हिसाब से बात कर रहा हूं जो कि हो चुका है। यहूदा वो है जिसमें से यीशु है। तो इससे जो गलती हुई, लिखा कि उसका गुनाह कैसे लिखा गया है? हीरे की नोक से लिखा गया है, ठीक है। कैसे? हीरे की नोक से लिखा गया है जी। उनके दिल की तख्ती पर, उनके मजबों के सींगों पर कुंद किया गया है। कुंद किया गया है क्योंकि उनके बेटे अपने मजबों और यसीरतों को याद करते हैं। यसीरतें क्या होती हैं? ये बुत है, ठीक है। कोई लाड खड़ी करना, यसीरत बनाना, किस चीज की नक्शा बनाकर उसकी परस्तिश करना, उनके दिलों में क्या बुत परस्ती है। आगे जी। जो हरे दरख्तों के पास ऊंचे पहाड़ों पर हैं, जो हरे दरख्तों के पास ऊंचे पहाड़ों पर हैं। ऐ मेरे पहाड़ जो मैदान में है, हाँ जी, मैं तेरा माल और तेरे सब खजाने और तेरे ऊंचे मकाम जिनको तूने अपनी तमाम सरहदों पर गुनाह के लिए बनाया लुटाऊंगा। क्या करूंगा? लुटाऊंगा। और तू आज खुद उस मिराज से जो मैंने तुझे दी अपने कसूर के बायस हाथ उठाएगा, और मैं उस मुल्क में जिसे तू नहीं जानता तुझसे तेरे दुश्मनों की खिदमत कराऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे कहर की आग भड़का दी। क्योंकि तुमने मेरे कहर की आग को क्या कर दिया है? भड़का दिया है। जब खुदा के खिलाफ चला जाता है, जब लोग खुदा के खिलाफ चलते हैं, जब सच्चाई को नहीं सुनते, जब सच्चाई के मुताबिक नहीं चलते, तो खुदा का कहर आग की तरह भड़कता है और खुदा सजा देता है और बर्बाद कर देता है। याद रखिएगा, दुरुस्त होने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी।
जो चीजें ज़ाहिरी तौर पर नजर आती हैं उन पर नजर नहीं करो, ये देखो कि सिखाया क्या जा रहा है। पढ़िएगा आगे, हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे एक और हवाला खुदा के कलाम में से, रोमियो के नाम पुलूस का खत पढ़िएगा जरा। रोमियो पहला बाब 18वीं से 32वीं आयत तक जरा जल्दी से पढ़ दीजिएगा भाई साहब जरा जी। इसके साथ एक और वाला निकालें, मुकाशफा 17वां बाब पहली आयत, मुकाशफा 18वां बाब पहली आयत निकालिएगा जी। रोमियो क्योंकि खुदा का जी सर, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराज। खुदा का गजब उन आदमियों पर आसमान से क्या होता है, जाहिर होता है, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, हक को दबा देते हैं, सच्चाई को दबा देते हैं, झूठ की पैरवी करते हैं, उन पर आसमान से खुदा का गजब क्या होता है, जाहिर होता है। बनी इसराइल को खुदा यही बता रहा था कि वो काम नहीं करने, इन जो काम वो कर रहे हैं अगर करोगे तो फिर वही होएगा जो उन्होंने नाल होएगा। आमीन। यहूदा के साथ ये लिखा नहीं है, यिर्मयाह में आपने पढ़ा नहीं है कि वो काम जो गैर कौमें ने करती है वो यहूदा कर रहा है, और ये भी यही लिखा है। पढ़िएगा आगे जरा जी। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, आगे इसलिए कि खुदा ने उनको उन पर जाहिर कर दिया। हाँ जी, क्योंकि उनकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है। हाँ? यहाँ तक कि उनको कुछ फौकियत उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगर उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक, खुदा को जान तो लिया पर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी, उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी ना की। जान तो लिया पर उसके मुताबिक, उसके म्यार के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर की। आज बहुत सारे लोग हैं कि जो खुदा को तो जानते हैं पर खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते, खुदा जो चाहता वो करना नहीं चाहते, हकीकत जो है वो उसको मानना नहीं चाहते, झूठ की पैरवी करते हैं। आगे बढ़िएगा। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ के और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया है। आगे वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। हाँ जी, और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपायों और ठीक है, गैर फानी में बदल डाला। अच्छा, खुदा गैर फानी है, फानी का मतलब है खत्म होने वाला, जो खत्म हो जाएगा। गैर फानी खुदा को फानी चीजों में बदल दिया, कीड़े और मकोड़ों में। किस में बदल दिया? कीड़े और मकोड़ों में। सूरता जो बदलता है खुदा है। एक बुत बना के बंदा कहे है यीशु मसीह है, ऐ खुदा है, तो लान तो नहीं है? कलाम में तो लिखा है, पहला हुक्म ही है कि तुम मेरे हुजूर किसी गैर मबूद को सजदा ना करना, किसी कोई लाठ ना बनाना। दासे काम किनू किनू होंगे ने जी, किनू आंदे ने पढ़े बोले, कोई भी बोले, 4 हुक्म पहले पढ़ो जिन्हों आंदे ने। शाबाश। पहला हुक्म क्या है? शाबाश। पहला हुक्म क्या है जी? सुनिए जी भाई साहब, आगे पढ़ो, टाइम नहीं है जी पढ़े सर। ओके, इन्हें पढ़ लिया जी। आगे इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमती किए जाए, उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हाँ जी, और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश की और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक मामूद है, जो अब तक क्या है? महमूद है। आगे इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया। हाँ जी, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबी काम के खिलाफ
तभी काम से बदल डाला। हाँ जी। इसी तरह मर्द भी औरतों से तभी काम छोड़कर आपस में शहवत से मस्त हो गए। ये अभी जो मैंने आपको पहले बताया सेम सेक्स की बात कर रहा हूँ, जो बदी अभी पाकिस्तान में शुरू हो गई है, दुनिया में स्टार्ट हो गई है। मैं तेन एंड तो दसांगा शुरू किने की है, बस आ रहा मैं जी। पढ़ो पढ़ो जी। मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया जी। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। ताकि नालायक हरकतें करे। अगर कोई खुदा को पहचानना नहीं चाहता, अगर खुदा की बात नहीं मानना चाहता, खुदा के अंदर चल जाफर का रखो, मर मर डाल के मर। आंदा है मैं प्यो दादा तो ऐसे सिस्टम चाह, मैं नहीं बदलना, ले फिर मार। हमें तो यही सिखाया गया है, मैं तो यही हूं। पर सुनिएगा बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। अमूस की किताब निकालिएगा जल्दी से, अमूस 7वां बाब 14वीं 17वीं आयत तक जरा पढ़ देगा। 3 आयतों को 14, 15, 16, 17 4 आयतें जल्दी से, कोई भी जल्दी से पढ़ दे। अमूस चैप्टर कौन सा? 7 चैप्टर जी। 14, 15, 16, 17 जी। तब अमूस ने अमस्या को जवाब दिया, तब अमूस ने अमस्या को जवाब दिया कि मैं न नबी हूँ न नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गुलर का फल बटोरने वाला हूँ। आगे। और जब मैं अल्लाह के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया, जा मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर। जा मेरी कौम बनी इसराइल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। मैं कहता हूं 215 के लोगों, खुदा का कलाम सुनो। अभी आपने सुना है कि गैर कौमों जैसे काम नहीं करने। जो काम गैर कौमें कर रही हैं, अगर मसीही भी अगर करेंगे तो याद रखिएगा तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सदूम और अमूरा के लोग अगर नहीं बचे तो ये जमाना भी बचेगा नहीं। नूह का जमाना नहीं बचा तो बचेगा ये भी नहीं। पर कलाम में यीशु मसीह ने ये तस्वीर दिखाई है मत्ती की इंजील के अंदर 24वें बाब के अंदर लिखा है कि जब इब्ने आदम का आने का वक्त होगा तो दुनिया का जो हालात है वो सदूम और अमूरा और नूह का जमाना दोहराया जाएगा। और जो अभी दुनिया में हो रहा है वो सदूम और अमूरा का दौर है, मुल्क किनान का दौर है, उन कौमों का दौर है जो मैंने आपको पढ़ाई है। वही दौर इस वक्त दुनिया में चल रहा है। अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा बने तो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे और कलाम में लिखा है कि भस्म कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? भस्म कर दिए जाएंगे। अभी पाकिस्तान में बड़ा शोर पड़ेगा। जितनी वो जमातें हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, इस पर तैयारी हो रही है क्योंकि ये बिल पाकिस्तान के अंदर पास हो चुका है और इस पर बातचीत भी हो चुकी है। बेकायदा ये बिल की बात जो है वो टीवी पर तमाम सरकारी चैनल और दूसरे चैनल जो है उन पर चलाई गई और स्पीकर के सामने सदा की गई कि ये आप लोगों ने क्या तमाशा शुरू कर दिया। ये तो खुदा के खिलाफ है। पर कलाम में लिखा कि खुदा के खिलाफ काम किए जाएंगे, जैसे सदूम और अमूरा में हुआ, जैसे नूह के जमाना में हुआ। ये सुने जमाने की शक्ल दिखाई है मत्ती की इंजील के 24वें बाब के अंदर। हवाला कटो पाल साहब, सुनते क्यों हो जी? पढ़िएगा सर आप, ये पढ़े थे जी। आगे नहीं वही जो आप पढ़ रहे हैं अभी ये जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। एक मिनट तो सर पहले आप पढ़ लो जी। अगवा देता जी। ओके। हाँ जी ओके, पढ़िए सर। और जब मैं अल्लाह के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद सुन। खुदावंद का कलाम सुन। तू कहता है कि इसराइल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर। तू कहता है, कौन है बंदा? बंदे मुखालफत कर दे की कहते ने जो एहसान आंदा है ठीक नहीं। मिसाल के तौर पर पैसा तो रखी ना है तुसी इत्थे रहने वाले किधर लेना पैसा जी। पास्टर अकरम जो आंदा है ठीक नहीं आंदा। सैमुअल साहब लिखा है सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने ना दिया। बंदे मिल जाएंगे, सैमुअल नहीं खुदा की गल मिलन देगा।
सब बोले हालेलुया। देखिए सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने ओए अमूस की आंदा आंदा भाई तू मैनू की आना है खुदा का कलाम ना सुना। उन्हें कहा मैं कदे नबी सा मैं तो भेडा चारदा सा तो खुदा ने मैनू कहा जा कलाम च ना जाके मैं आ गया मैं कोई नबी का पुत्र हाँ या तुम डकन दे मैं ऐसी गल वेखी है मैं मुड़ना ही नहीं। खुदा ने मैनू कहा मैं नहीं मुड़ना तू मैनू कहना ना सुना। एक लीडर सी बंदा है मुंह बंद करना है पादरी का हाय पर जिन्होंने मुंह खुदा ने खोलिया बिल्कुल बंद नहीं होना। सब बोले हालेलुया। बिल्कुल बंद नहीं होना तू ही बंद होएगा। जी आगे जी सर। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी। तेरी बीवी कसबी बनेगी। सुन फिर उन्हें कहा तू खुदा दा मुंह बंद करना चाहना है खुदा दे कलाम नू रद्द कीता हुण तेरी बीवी कसबी बनेगी कंजरी। और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे। तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे। और तेरी जमीन जारीब से तकसीम की जाएगी। तेरी जमीन क्या होगी जारीब से क्या होगी तकसीम की जाएगी। आगे तू एक नापाक मुल्क में मरेगा। तू एक नापाक मुल्क में मरेगा। तू पाक मुल्क से रहना है तू खुदा दे मुल्क से रह रहा है मुल्क किनान च पर तू गैर एक मुल्क च जाके नापाक मुल्क दे च मरेगा। क्यों क्योंकि तूने खुदा के कलाम को रोका है। जो सच्चाई को नहीं मानते जो सच्चाई का मुंह बंद करना चाहते हैं वो जरूर मरेंगे और उनकी सजा यही है। खुदा दे सामने नहीं खलोना काम खराब है। पादरी नूं नहीं छेड़ना खुदा नूं छेड़ने वाली गल है। इस्लामाबाद एक बंदा उन्हें एक दफा मेरे नाल कीती बदतमीजी ज्यादती की एक कोई लाख रुपए की ज्यादती की तो उन्होंने 10 लाख का चूना लगा। उन्हें क्या पादरी कलीम नूं छेड़ना खुदा नूं वट्टा मारना है इनू नहीं छेड़ना इनू नहीं छेड़ना। तो क्यों ने मैंने ज्यादती की थी मैं दुआ की थी मैं कहा खुदा मेरा इंसाफ तू करने वाला है मैं परंडिया नहीं मैं उन्हें कुछ नहीं आख्या। हम जिथे मिल गया जिथे मिलता कहना जी उस्ताद जी इस्लाम बपतिस्मा उन्हें मैं दिता है पर बहुत बदतमीज आदमी सी सूदखोर सी। ठीक है याद रखिएगा। आपको याद होगा जब मैं पहली बार यहां पे आया था किन्हीं क्यों नहीं याद है एक गाड़ी थी मेरे पास उसी ने मुझे दी थी। सारी कलीसिया के सामने खड़े होकर उसने कहा ये भाई साहब को मैंने गाड़ी दे रहा हूं कि इंजील की मुनादी किया करें। उससे गड्डी दा रौला सी किसी पुलिस वाले को उसने दी इंस्पेक्टर को और उसने उसका इंजन खराब कर दिया। उन्हें कहा जी तुसी करवाओगे ये तुहाडे ते पिया तुसी कीता। मैंने कहा खुदावन ठीक है तो मैंने किया जो 10 लाख की पई ना तो कहता जी किंज माफी मिलेगी तो मैं क्या तू माफी मांग मिल गई तेन मैं तेन माफ किया। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा लाख वापस कर दे मैं क्या तू भी रख तो तेन माफी भी है पर मैं क्या हूँ दोबारा गलती नहीं करनी है। हूँ 10 की पई है मैं कहना 60 लाख का घर है हफ्जो एक गायब हो जाएगा जे अगर तू खुदा की गल ना मनी। याद रखिएगा खुदा की बात को मानना बड़ा जरूरी है। मुंह नहीं खुदा दा बंद करना। पादरी खुदा दा मुंह है। हालेलुया। दसो केड़ी गल जे मैं बाइबल तुहाडे ते कीती है सारी पढ़िया नहीं जे मैं कभी भी पेपर शेपर लेके कलाम नहीं सुनांदा पर आज तेरा मैं स्पेशली तेरा काम किया। हालेलुया। मैं दुआ कर रहा था तो खुदा मुझे हवाले दिए जा रहा था मैं फिर लिखे मैं पादी साहब ने क्या बेटे ने क्या मैं लिखी जाओ खुदा दे रहा है तो वे लोग गल ना गल मिल नहीं रही कोई गल के पिछे जा गई होवे एदा मतलब खुदा ने कलाम किया है। हालांकि मैं सुनाना कुछ होर सी जेड़ा मैं इस्लामाबाद लैके आया सा वो मैं लैके आया सा हिस्किल की किताब चो पर इत्थे आके काम ही चेंज हो गया। हालेलुया। उन्हें कहा इतने हिस्किल नहीं है इतने पूरा खाता चलेगा। सब बोले हालेलुया। ये पढ़िएगा सर आगे क्या लिखा है तू कहता है। हाँ जी पढ़िएगा आगे थोड़ा सा फिर हम अगला वाला पढ़ते हैं जी। 8वां चैप्टर शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है पूरा हो गया सॉरी ओके गॉड ब्लेस यू। सब बोले हालेलुया। लो जी 2 हवाले रह गए कड़क किस्म के सिर्फ 2 हवाले और टोटली 5 मिनट मुझे चाहिए आपके फिर पादी साहब का मौका है। हालेलुया। मुझे पता है बड़ा प्यार करते हैं इनसे। हालेलुया। मैं भी बड़ा प्यार करता हूँ। अभी तो मैं वहाँ पे बैठ के सुनता हूँ। कोई वक्त था कि जब गाते थे तो मैं यूं खड़े होकर यूं देखता था
हूँ थोड़ा मैं सियाना हो गया सब बोले हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जी मुकाशवा की किताब निकालें मुकाशवा की किताब 17वां बाब पहली आयत 18वां बाब पहली आयत दो पादी दो वाले काट लो ते आखिरी मेरा मत्ती दी इंजील काट के रखना है जी पढ़िएगा और उन सातों फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। ये बहुत से पानियों से मुराद कौमें हैं ना कि कोई समुंदर तक बीबी बैठी है और ये एक कौम है या एक तंजीम की बात हो रही है जी आगे पढ़िएगा और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की है और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे आगे बस वो मुझे रू में जंगल को ले गया। हाँ वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो एक किरमजी रंग का हैवान देखा और उसमें ऊपर क्या लिखे थे कुफर के नामों से लिपा हुआ था कुफर के नामों से लिपा हुआ था लिपा समझ ना दीवार लिपी दी है ना हाँ हो चलो जी आगे और जिसके साथ सर और 10 सिंह थे 7 सर और क्या थे 10 सिंह थे 10 7 हुकूमतें एक और 10 हुकूमतें एक 17 जी आगे एक औरत को बैठे हुए देखा ये औरत रगवानी किरमजी लिबास पहने ये रगवानी और किरमजी रंग का क्या पहने हुए थी लिबास और सोने और जवाहर और जवाहर और क्या है मोतियों से आरास्ता थी और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नपाकियों से भरा हुआ था और उसके माथे पर ये लिखा हुआ था हाँ जी राज बड़ा शहर बाबुल कस्बियों और जमीन की मकरूहात कस्बी कौन होती है भला पता है कसबी किन्नू आंदे ने जिस्म फरोश औरत जो अपने जिस्म को बेचती है आवारा औरत जिसे हम कहते हैं ठीक है आगे बढ़िएगा जी कसबियों और जमीन की मकरूहात की माँ और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून पीते और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा मतवाला कर की रही आओ यस्सु दे शहीदां दा यस्सु दे मुकद्दसां दा खून पींदी है मुंह बंद कर रही है मुंह बंद कर एक गल्ला करना तेन अकल नहीं हो सकता नहीं कर सकता उन्हें क्या इत्थे गोली खावांगे सच्ची गल सुनावांगे हालेलुया आगे उस फरिश्ते ने मुझसे कहा तू हैरान क्यों हो गया मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता भेद क्या है ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था हाँ जी मगर अब नहीं है आइंदा था घड़े से निकलकर शैतानी आइंदा निकलेगा आगे अथा घड़े में पड़ेगा और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए हाँ जी इस हैवान का ये हाल देख कर के पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा जी तौजब करेंगे यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है समझ आओ समझना है ये पहले ने सी हुन फेरे आ गया ये की होया है ये मौजज़ा है अब पागलो होशो ये कौन है ओ भाई ये शैतान जे आगे बढ़ो जी वो 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी वो 7 सर 7 क्या हैं पहाड़ हैं आगे जिन पर वो औरत बैठी हुई है हाँ जी आगे और वो 7 बादशाह भी हैं 5 बादशाह भी हैं 5 और पहाड़ भी हैं और ये उन पर 5 हो चुके और 2
5 हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, एक कभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है। आगे और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो 8वां है, हाँ। और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सिंह जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के वास्ते ये यूनाइटेड नेशन है। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, यूएनए की बात हो रही है, क्योंकि यूएनए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आमीन। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, सब बोले हालेलुया। 18वें बाब की पहली आयत को जरा पढ़िएगा, मुकाशफा। बात लंबी हो रही है जी, आखिरी बात है ये। हाँ जी, पहली आयत से। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, हाँ, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, हाँ, और शैतान का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और नापाक और मकरू परिंदे का अड्डा हो गया। हाँ जी, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मै के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं। हाँ जी, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है। उसके साथ क्या की है? हरामकारी की है। उसका क्या मतलब है? कि जो है कहंदी है दे नाल मिल के कर देने। की कर देने? मिल के कर देना। अभी भी मिलकर हुआ है, अभी भी। ये जो मैंने अभी बताया ना, सेम सेक्स, जो कुछ आपने पढ़ा रोमियो के खत में, जो कुछ पढ़ा आपने लूत के जमाने में, ये सारे मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, मत्ती की इंजील जी, जल्दी से भाई साहब, जल्दी ना रोला पा दो। हालेलुया जी, जी हवाला 24वां बाब जी, ओके, आयत पहली से पढ़ दे। हाल है। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए, उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, उसने उनसे जवाब में कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? तुम सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ जी, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, यहाँ पर किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, हाँ जी, तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, शागिर्दा ने अलग आके पूछा, उस्ताद जी दस्यो मामलात की ने जी, आगे हमको बता ये बातें कब होंगी, हाँ, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या? निशान बता। आगे यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे हाँ जी, मैं मसीह हूँ, हाँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, आगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। जी, आगे और खबरदार घबरा ना जाना, घबराना भी नहीं, डरना भी नहीं, गुमराह भी नहीं होना। आगे ये इन बातों का वाकया होना जरूर है, हाँ जी, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, हाँ जी, क्योंकि कौम पर कौम हाँ जी, और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, आगे और जगह बजगह काल पड़ेंगे और बंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू, ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको अजियत देने के लिए पकड़वाएंगे हाँ जी, और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, आगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत क्या होगी? ठंडी पड़ जाएगी। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जो अभी दुनिया में शुरू हो चुकी है, ये बेदीनी नहीं है। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आगे
मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा हाँ जी, वो निजात वो पाएगा। निजात पाएगा। और बादशाह की इस खुशखबरी की मुनादी बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में क्या है होगी, आगे, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तब खात्मा होगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, हाँ जी, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ, देखो देखो पढ़ने वाला समझ ले। पढ़ने वाला समझे दानियल की किताब में क्या लिखा है। जो हैकल अब दुनिया में नहीं लिखा है कि एक अरामी पाजी बादशाह उसे बनाएगा, आराम का पाजी बादशाह, और उसकी तैयारी हो रही है। जैसे ही हैकल बनेगी, ये हैकल जो है उस दौर में बनेगी जिस दौर में पाजी बादशाह आएगा, और उसकी तैयारी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आप आखिर जमाना में हैं, और जो कौमें कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं करना, क्योंकि हम मुकद्दस कौम है। कलीसिया मसीह का बदन है, मसीह पाक है, लिखा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसलिए तुम भी पाक हो। अपने आप को पाक करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पाक है। दुनिया में जो हो रहा है ये कलाम है, और जो हो रहा है वो टल नहीं सकता। इसलिए अपने आप को दुरुस्त कीजिए और अपनी आंखों को खोलें। मिश्रण के चक्कर च नहीं पैना, यीशु के चक्कर च पैना है। मिश्रण के चक्कर चो बाहर आओ, बाइबल के चक्कर च पै जाओ। हालेलुया। ये मैं आपको कलाम सुना रहा हूं, सब बोले हालेलुया। पढ़िएगा आगे जल्दी से। तो जो यहूदिया में हो, हाँ वो पहाड़ों पर भाग जाए। जी आगे। जो कोठों पर हो, वो अपने घर का स्वाब लेने को नीचे ना उतरे। हाँ जो खेत में हो, वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। जी मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो आगे। और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, हाँ, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। ना तो अब तक हुई है, ना कभी होगी, वैसी मुसीबत है आगे। और अगर वो दिन घटाए ना जाते, हाँ जी, तो कोई बशर ना बचता, वो दिन घटाए जाएंगे मुकद्दसों की वजह से आगे। मगर बरगजिदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। हाँ, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या वहाँ, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, हाँ जी, झूठे नबी उठ खड़े होंगे आगे। और ऐसे बड़े निशान और अजायब काम दिखाएंगे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी क्या कर लेंगे, गुमराह कर लेंगे। और मैं तो बताना चाहता हूँ, यूरोप के अंदर बहुत सारे चर्च हैं जिनके अंदर ये निकाह होना शुरू हो गए हैं। मर्द का और औरत का निकाह हो रहा है। चर्च मिनिस्ट्रियां वड्डियां तंजीमा हुण एंड ते जो गल करांगा फिर कईयां दे कान खुलणगे की आ गया जी आगे जी। देखो मैंने पहले ही तुमसे ये कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, हाँ जी, तो बाहर ना जाना। या देखो वो कोठरियों में है, तो यकीन ना करना जी, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से क्या होती है, कूद कर, पूरब का क्या मतलब है, मशरिक। बिजली मशरिक से कड़कती है और क्या होती है, कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है। वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। इब्ने आदम आसमान में दिखाई देगा जब वो आएगा, क्योंकि वो कुदसियों के साथ और फरिश्तों के साथ आएगा, मुकद्दसों के साथ आएगा। और लिखा कि जैसे ही पहला नरसिंगा फूंका जाएगा, पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, जो बाकी हम जिंदा होंगे बदल जाएंगे, उठकर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। आसमान वाइट हो जाएगा, क्योंकि मुकद्दसीन जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, और जो मुर्दा होंगे वो जमीन में से बाहर आएंगे, उठकर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, और आसमान की फिजा वाइट हो जाएगी। हालेलुया। पूरी दुनिया यीशु को देखेगी। हालेलुया। कुरान में मुकद्दस, जो कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि हजरत ईसा आएंगे और वो दुनिया की अदालत करेंगे। हालेलुया। लिखा कि वो दुनिया की क्या करेंगे, वो अदालत करेंगे, वो तख्त पर बैठेंगे और दुनिया की अदालत करेंगे। अदालत का सारा निजाम यीशु के हाथ में है, हजरत ईसा के हाथ में है। यीशु की बात कर रहा हूं, पढ़िएगा। जहां मुर्दार है वहां पर गिद्ध भी हैं। जिथे कोई चीज मरी होंदी है उत्थे गिद्ध उत्ते नजर आंदियां ने जी।
आए मिसाल है ये कि जैसे गिद्ध मुर्दार पर नजर आती हैं, जब यीशु आएगा तो लोग नजर आएंगे। पढ़िएगा, फिजा चेंज हो जाएगी आगे। और फौरन उन दिनों के बाद, उन हाँ। दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा सूरज तारीक हो जाएगा, और चांद अपनी रोशनी ना चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिर पड़ेंगे हाँ, और गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा आगे और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी सब कौमें छाती पीटेंगी। और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत हाँ जी और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी जी, भाई साहब करीब आ जाए। हाँ जी, देखेंगी आगे। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ, वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा अपने फरिश्तों को भेजेगा, और उसके बरगज़ों को चारों तरफ से अपने बरगसीदों को चारों तरफ से घेर लेंगे। आगे आसमान के इस किनारे से हाँ, उस किनारे तक जमा करेंगे। जमा करेंगे। अब अंजीर के दरख्त की ये याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस जो कहती है वो होने वाला है। सब बोले हालेलुया। आखिरी बात ये है जो मैं करने लगा हूं, इसकी तहकीकात करके फिर आपने मुझे फोन करना है। मौजूदा इस वक्त जो पोप है उन्होंने ये साइन किए हैं, और सिर्फ वो नहीं है, बाकी मजहबों के लोग भी मौजूद हैं उनके साथ। ये कानून पास करने के लिए सेम सेक्स उन्होंने कानून पास किया है। आइए जाके दुनिया में रिसर्च करें, पूछें तो ये कानून पास किया गया है। इसके अंदर चर्च तंजीमें भी मौजूद हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये होगा, बथेरे गुमराह होंगे और इस गुनाह के अंदर लोग हैं, और जो इनका साथ दे रहे हैं वो मजहबी लीडर हैं, आम लोग नहीं इनके साथ। जिधर एक अन्ना टुर पे तो सारे पीछे टुर पाइए, एक गलत हो गए सारे गलत नहीं, ऐसा नहीं है। पर हमने अपनी आंखों को खोलना है और कलाम के मुताबिक चलना है। हालेलुया। लिखा कि जो काम गैर कौमें करती है वो तुम ना करना, क्योंकि इसी स्वभाव से जो वो करती है मैं तुम्हारे सामने से निकालने पर हूं। खुदा उन कौमों को बर्बाद कर देगा, उन लोगों को खराब कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा जो खुदा के खिलाफ है। आइए अपने सर को झुकाएं और अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने गुनाह को छोड़कर सच्चाई की तरफ आएं और यीशु मसीह को कबूल करें, अपने गुनाह से तौबा करें। आपके पास मौका है, आप अपने गुनाह से तौबा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करना शुरू